اب یہاں پر بات کریں گے، پنجاب حکومت نے صحت کے 4 بڑے منصوبوں کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبے غیر ترقیاتی بجٹ سے ترقیاتی بجٹ میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے لیپ ٹاپس کے لیے 5.5 ارب روپے کا بجٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ سیلاب سے متاثرہ اسکولز کی بحالی کے لیے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے 50 کروڑ روپے منظور کر لیے ہیں۔ پنجاب حکومت نے صحت کے 4 بڑے منصوبوں کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کے لیے 1 ارب روپے، مریم نواز رورل ہسپتال پروگرام کے لیے 3 ارب روپے، مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز پروگرام کے لیے 12 ارب 58 کروڑ روپے، جبکہ پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے لیے 4 ارب 44 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا منصوبہ، محکمہ خزانہ نے لیپ ٹاپس کے لیے 5.5 ارب روپے کا بجٹ جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے بھی 1 ارب 50 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سیلاب سے متاثرہ اسکولز کی بحالی کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈ منظور کر لیے گئے ہیں۔ شدید نقصان کا شکار اسکولز کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جزوی نقصان والے اسکولوں کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، معمولی نقصان والے اسکولوں کو 1 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مکمل طور پر منہدم اسکولز میں 2 کمروں کی تعمیر کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ بجلی بلز چارج کرنے کی پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بجلی چوروں سے کروڑوں یونٹس کے ڈیٹیکشن بلز چارج ہوئے ہیں۔ صارفین نے ادائیگی کی بجائے عدالتوں سے یہ رجوع کر لیا۔ ریکوری کی شرح بڑھانے اور غلط ڈیٹیکشن کی روک تھام کے لیے فیصلہ کیا گیا، بلز کی ادائیگی تک کنیکشن بحال نہیں ہو سکیں گے۔ جعلی ڈیٹیکشن بل کی روک تھام اور ریکوری کے لیے اقدامات۔ لیسکو نے بلز چارج کرنے کی پالیسی تبدیل کر دی۔ بجلی چوروں کو بلز چارج کرنے کے لیے ایڈوانس بلز وصول کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ انسداد بجلی چوری مہم کے دوران بجلی چوروں کو پکڑ کر کروڑوں یونٹس کے ڈیٹیکشن بلز چارج کیے گئے، تاہم صارفین نے ادائیگی کرنے کی بجائے عدالتوں سے رجوع کر لیا۔ عدالتوں میں کیسز دائر ہونے پر ڈیٹیکشن بلز کی ریکوری کی شرح انتہائی کم ہو گئی۔ لیسکو نے ریکوری کی شرح کو بڑھانے اور غلط ڈیٹیکشن کی روک تھام کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ڈی بل فیڈ کرنے سے قبل ادائیگی کرنا ہوگی۔ اسی طرح بجلی چوروں کو پکڑ کر ایڈوانس بلز کی ادائیگی تک کنیکشن بحال نہیں ہو سکیں گے۔ بجلی چوروں کو مقدمہ درج ہونے پر کنیکشن بحالی کے لیے ایڈوانس بل جمع کروانا ہوگا۔ اب یہاں پر بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کی، تو مانسون کا 11واں اسپیل کل سے شروع ہوگا۔ طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، پی ڈی ایم اے نے متعلقہ محکموں اور ضلعی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا ہے۔ باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی نے بھی پنجے کاٹ دیے ہیں۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا موسم بدستور گرم ہے، پارہ 32 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مانسون کا 11واں اسپیل منگل سے شروع ہوگا، 16 سے 19 ستمبر تک جاری رہے گا۔ طوفانی بارشیں ہوں گی۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ محکموں اور ضلعی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا۔ پی ڈی ایم اے نے صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ کر دیا۔ صحت، آبپاشی، تعمیرات و مواصلات، لوکل گورنمنٹ اور لائیو اسٹاک سمیت تمام متعلقہ اداروں کو بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ دوسری جانب باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی نے بھی پنجے گاڑ دیے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا موسم بدستور گرم رہا، درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 70% ریکارڈ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ مٹن اور بیف کے بعد چکن بھی سستا نہ رہا۔ برالا گوشت کی قیمت آسمان پر، سرکاری قیمت 577، مارکیٹ میں 650 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ صافی گوشت 700 روپے کلو ہو گیا۔ زندہ تھوک ریٹ 384 اور پرچون قیمت 398 روپے فی کلو مقرر ہے۔ سبزیاں اور پھل بدستور مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ آلو درجاول 70، بازار میں 90 روپے کلو، جبکہ پیاز 100، ٹماٹر 150، ادرک 500 روپے کلو پر دستیاب ہے۔ سیب، ناریل، انگور، کھجور اور امرود کے ریٹ بھی بڑھ چکے ہیں۔ مٹن اور بیف کے بعد چکن بھی سستا نہ رہا۔ برالا گوشت کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ برالا کے گوشت کی سرکاری قیمت 577 روپے مقرر ہے، جبکہ مارکیٹ میں 650 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ صافی گوشت 700 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ زندہ تھوک 384 اور پرچون قیمت 398 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ سبزیاں اور پھل بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہیں۔ سرکاری اور اوپن مارکیٹ کی قیمتوں میں فرق برقرار ہے۔ آلو درجہ اول کی سرکاری قیمت 70 روپے مقرر ہے، جبکہ بازار میں 90 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز درجہ اول کی سرکاری قیمت 70 روپے مقرر ہے، جبکہ بازار میں 100 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 120، مارکیٹ میں 150 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ادرک 470 روپے، بازار میں 500 روپے کلو دستیاب ہے، جبکہ سیب، ناریل، انگور، کھجور اور امرود کے ریٹ بھی بڑھ گئے۔
दूसरी जानब शहर में चीनी का बहरान खत्म न हो सका। शहर के बाद इलाकों के किराने की दुकानों पर चीनी बदस्तूर नापैद है। होलसेलर्स ब्लैक में चीनी 184 से 186 रुपए किलोग्राम बेचने लगे। किराना मर्चेंट का कहना है कि होलसेलर्स 50 किलो चीनी का थैला 9,200 रुपए का दे रहे हैं। LDA मुलाजमीन और अहले खाना की मुफ्त अद्वियात बंद कर दी गई। 25,000 से ज्यादा की अद्वियात इलाज की मद में अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी इजाजत देने की मजाज होगी। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए लैब और अद्वियात सिर्फ मुलाजिम और उनकी अहलिया के लिए होंगी। पेचीदा बीमारियों की अद्वियात का खर्चा ज्यादा है। गरीब मुलाजिम कहाँ जाए, मुलाजमीन शदीद परेशान। LDA ने मुलाजमीन और उनके अहले खाना के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बंद कर दिया। 25,000 से जायद की अद्वियात और इलाज मुआवजा की मद में अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी इजाजत देने की मजाज होगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए लैब और अद्वियात सिर्फ मुलाजिम और उनकी अहलिया के लिए होगी। हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों में सिर्फ बेटा 18 साल तक, बेटी 24 साल तक गैर शादीशुदा सहूलत से फायदा उठाएगी। मुलाजमीन का कहना है कि पेचीदा बीमारियों पर माहाना अखराजात अद्वियात और टेस्टों की मद में बहुत ज्यादा होते हैं। मुलाजमीन ने अपील की है कि LDA हुकाम आए रोज गरीब मुलाजमीन पर नई नई पाबंदियां लगा रहे हैं, जिस पर नोटिस लिया जाना चाहिए। थीम पार्क मौलनवाल में सैलाब का पानी अभी तक कई फुट तक जमा है। सैलाब को 19 रोज गुजर गए, अभी भी सैकड़ों घर डूबे हुए हैं। मकीनों की जानिब से हुकूमती तवज्जो की अपील है। थीम पार्क मोनलवाल में सैलाब का पानी अभी तक कई फुट तक खड़ा है। 19 रोज से सैकड़ों घर डूबे हुए हैं। शहरी परेशान है, कहते हैं हमें इमदाद भी नहीं मिल रही। पंप और मोटरें लगाई हैं मगर चला नहीं रहे। मुतासरा अफराद कहते हैं हमें सर छुपाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। मुतासरा खवातीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। छापर में खाना खा रहे हैं, कोई चारपाई नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई बिस्तर नहीं है। आगे मौसम बदल रहा है, हम क्या करेंगे, किधर से लेंगे बिस्तर वगैरह, बर्तन कहाँ से ले, चारपाई नहीं है। नीचे आपको पता है कि शाम वगैरह सब कुछ इधर है। एक खाला जा बनाया होया जे अगर काट दे हुण तां 18-19 दिन हो गए। यही चाहते हैं ना कि गरीबां दे घर बर्बाद हो जान। सानू की दिता, कोई चारपाई नहीं दे सके, की साढ़े वास्ते की सोच दे। हुकूमती नुमाइंदे आते हैं, तस्वीरें बनाकर चले जाते हैं, इमदाद नहीं मिलती। हमारी तजलील की जा रही है, हमें कोई नहीं पूछ रहा। हुकूमत से अपील है कि हमें मुतबादिल घर दें। 20वां दिन है, पानी जूं का तू है। 8 फुट 10 फुट मैक्सिमम एरियाज में जो है वो 8 से 10 फुट के राउंड अबाउट पानी है। आप बताएं कि 20 दिन किसी भी टेक्निकल तरीके से समझें कि बिल्डिंग खड़ी रहे तो वो तो बोसीदा हो जाएगी। गरीब लोग हैं, इन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी करके थोड़ी थोड़ी ईंटें करके पैसे इकट्ठे करके कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है। उनकी ये हालत है, उनके घरों में जो सामान था वो घर में ही रह गया, वो लोगों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हैं। बाकी ये है कि हमारे घर सारे डूबे हुए हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम है। हम लोग जो छोटे मोटे यहाँ खैमों में गुजारा कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास खैमों में ना तो वॉशरूम होते हैं, ना कोई प्रॉपर घर वाली प्रॉपर सहूलियात होती हैं। बाकी हमारी पुरजोर अपील है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से, एक दफ़ा हमारा ये आके देखें हाल, तो फिर अपने लोगों को हिदायत फरमाएँ कि वो हमारी मदद करें। लेकिन हमें असल मदद की ज़रूरत है कि हमारा पानी सूखे और हमारे जो घर टूट गए हैं, हमारे घरों की बहाली के लिए हमारी मदद की जाए। 19 रोज से डूबे हुए थीम पार्क के घर इंतजामिया और जिम्मेदारान की अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत है। थीम पार्क के हजारों मकीन आज भी हुकूमती ताउन की राह देख रहे हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। महकमा सेहत कंसल्टेंट डॉक्टर्स की तरक्की में रुकावट बन गया। SNGAD ने 154 कंसल्टेंट की ग्रेड 19 में तरक्की के अहकाम जारी कर दिए। अहल डॉक्टर्स महकमा सेहत और आबादी के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कंसल्टेंट डॉक्टर्स का वज़ीर आला और वज़ीर सेहत से रजू पर गौर है। ब्यूरोक्रेसी के रिवायती हथकंडे कंसल्टेंट डॉक्टर्स की तरक्की के लिए महकमा सर्विसेज के अहकामात हवा में उड़ा दिए। SNGAD ने 154 कंसल्टेंट की ग्रेड 19 में तरक्की के अहकामात दिए। 1.5 माह गुजरने के बावजूद कंसल्टेंट डॉक्टर्स की बतौर सीनियर कंसल्टेंट तरक्की और तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। पंजाब भर के 299 कंसल्टेंट्स में से 154 ग्रेड 19 में तरक्की के अहल करार पाए थे। सीनियर कंसल्टेंट के ओहदा पर तरक्की के अहल करार पाने वाले डॉक्टर्स महकमा सेहत और आबादी के दफातर के चक्कर लगाकर आजिज आ गए। 12 साल से तरक्की के मुंतजिर कंसल्टेंट डॉक्टर्स तरक्की और तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी न होने से बेचैनी का शिकार हैं। रेलवे स्टेशन हाजी कैंप लंडा बाजार में तजावुजात की भरमार है। रेड़ी बानों ने सड़क पर कब्जा जमा लिया।
ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। सड़कों और फुटपाथ पर तजावुजात की वजह से पैदल चलना मुहाल हो गया। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी देखिए, मैं इस वक्त हाजी कैंप के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो तजावुजात माफिया है वो दोबारा से सरगर्म होता नज़र आ रहा है और इसकी वजह से शहरियों को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन भी किए गए थे तजावुजात ख़त्म करवाने के, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन होता है तो जो स्टॉल्स हैं वो अंदर कर लिए जाते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन ख़त्म होता है तो दोबारा से जो स्टॉल्स हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता था। और इसी तरह से हाजी कैंप के ऊपर जो पार्किंग इंतज़ामिया है वो भी सरगर्म है और फुटपाथ जो कि लोगों के गुजरने की जगह हैं वहाँ पर भी मोटरसाइकिलें जो हैं वो खड़ी की हुई हैं। और मोटरसाइकिल चोरी होना भी यहाँ पर मामूल बन गया, क्योंकि जब फुटपाथ पर बाइक लगा के लोग अंदर जाते हैं और पीछे से बाइक जो है वो लापता हो जाती है और यही सिलसिला कई अरसे से चल रहा है। जबकि हाजी कैंप के बाहर जो लंडा बाज़ार है वहाँ पर जो तजावुजात का मसला है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है और इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पैदा हो रहा है और शहरियों को भी गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों का कहना है कि जो लंडा बाज़ार है इसके बाहर अगर इंतज़ामिया कोई बेहतर इक़दामात। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। अब दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन के वकला को 18 सितंबर को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। साबिक वज़रा खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त के असासों और नैब की जानिब से कार्रवाई न होने के मामले पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई। 9 मई के मुकदमात ज़ेर हिरासत रहनुमाओं की दरखास्त जमानत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद और उमर सरफराज सीमा की बाद अज गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। सानहा 9 मई जमान पार्क में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में 2 गवाहान ने बयानात कलमबंद कराए। मुल्जिमान के वकला ने गवाहान से जरा मुकम्मल की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अमीर बालाज कत्ल केस एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर काजमी ने गोगी बट की अबूरी जमानत में 23 सितंबर तक तौसी कर दी। अमीर बालाज का चालान मॉडल कोर्ट से दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। हाई कोर्ट में महकमा औकाफ की अराजी वागजार करवाने के केस की समाअत। डीआईजी ऑपरेशंस अदालत में पेश। अदालत ने रेवेन्यू रिकॉर्ड की फाइल तलब कर ली। जस्टिस फारूक हैदर ने सेक्रेटरी औकाफ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की दरखास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से खवातीन के नान नुफ्का के हवाले से फैसले के बाद सिविल कोर्ट में खर्चे का पहला केस दायर। दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि निकाह 1 साल पहले हुआ, रुखसती नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खर्चा दिलवाया जाए। मकान की तामीर का काम अधूरा छोड़कर जाने का मामला। शहरी ने सलीम कंस्ट्रक्शंस फिरोजपुर रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने फरीकैन को बहस के लिए नोटिस जारी कर दिए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा। पोर्टल पर सार्फिन की तादाद 15,80,000 से तजावुज कर गई है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत महकमा हाउसिंग में अहम इजलास हुआ। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने महकमा नामूर बारे तफसीली ब्रीफिंग की। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन और दीगर मनसूबों की पेशरफ्त बारे भी आगाह किया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट के ज़रिए तमाम 46वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से कबल ख़ुसूसी आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल होटल में होने वाले सेशन का इनेकाद इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और मेडिकल वुमेन एसोसिएशन पाकिस्तान के इश्तराक से किया गया। लाहौर हाई कोर्ट की मौजूद जज जस्टिस अबहिर गुल खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर अख्तर सहल चुगताई, सदर PAP प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी, प्रोफेसर सायरा अफजल समेत दीगर माहरीन शरीक हुए। काफ़ी कंट्री के अंदर तो ये सर्विक्स का कैंसर ख़त्म हो जाता है। सर्विक्स होती है बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, ये छाती के कैंसर के बाद औरतों में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए दुनिया में सर्वाइकल कैंसर बहुत कम हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि वैक्सीन नहीं थी और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक DNA वायरस है जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। मुकर्रीन का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर एक संगीन मसला है जिससे बचाव के लिए HPV वैक्सीनेशन निहायत ज़रूरी है। दुनिया में अगर कोविड का खात्मा हुआ तो वो थ्रू वैक्सीन हुआ है। तो सर्वाइकल कैंसर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर द वुमेन और ये दिस इज़ द ओनली कैंसर विच इज़ प्रिवेंटेबल एंड प्रिवेंशन इज़ थ्रू वैक्सीन ओनली। सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि जो लगवाएगा वो इनफर्टाइल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वैक्सीन है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18, वैसे तो बहुत सारे हैं
लेकिन ये खतरनाक है जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है। सेशन के दौरान पैनल डिस्कशन और सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रहा, जिसमें शुरा को बराह रास्त माहरीन से मालूमात हासिल करने का मौका मिला। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।